Hello Yashvir, how are you? I'm good, sir. How are you? I'm great, great. So this is like first uh, sort of episode that we are recording. जो Mm-hmm. प्रोग्राम का नाम मैंने रखा है that is here we talk. So like in this Okay. podcast we only talk about certain things. So this Mm-hmm. episode like I am trying to know more about what you are studied and what you are doing right now. So before we start, can you provide me a brief introduction about you so that audience may know what are you doing? Sure. So my full name is Yashveer Singh Shrimal. At this moment, I'm working as a data analyst in one of the insurance companies named Ameri Life here in United States. I'm currently in Philadelphia. I completed my master's from Drexel University in business analytics. Earlier, I had a background of management and business, and I did my bachelor's in an MBA back in India, majoring in marketing and advertising. So, this is a brief about my background and how I came from management and business background to pursuing a little bit of business and tech degree here in United States, and yeah, it is going well at this moment. So. Okay, great. So, Yashvir, can you tell me that why did you choose to be a data analyst? Uh, I mean, like, I don't have a specific answer for this, but when I was pursuing my MBA back in India, I was simultaneously working for some of my friends' companies, and my interest just got a spark from there. I also came to your I came to you to learn Tableau and SQL a little bit more. I had a little bit idea of SQL, Java, and some other languages uh, from school life, but you know, people say that data is the new oil, which is certainly because everything is shifting on data, and any decisions you make in marketing or finance or any field is backed by data. So uh, basically, I just wanted to learn more and more about how we can drive insights and make decisions based on data. uh, I have my future goals of entrepreneurship and starting my own companies, and I thought that this would be a great addition to my skill set that I would learn by myself, that how we can gain insights from analyzing different data sets. That's great. That's great. One thing that I would like to ask, इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा और इस पे जानना चाहता हूँ कि Hmm. जब आप इंदौर में थे तो आप क्या पढ़ रहे थे एंड वहाँ से फिर इधर कहाँ गए मतलब एक आई नो कि व्हाट यू आर डूइंग एंड देन दिस इज टू बी ऑनेस्ट काफ़ी डिफरेंट हो जाता है. हाँ, मतलब कैन यू एक्सप्लेन बिट दिस अ बिट मोर? डिफरेंट फ्रॉम इंडिया टू यूएस, राइट? या. हाँ, तो मैं इंदौर में था। इंदौर में मैं एमबीए कर रहा था आईआईपीएस से, विच इज़ अ वेरी गुड कॉलेज इन इंदौर। सो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई वांट टू परस्यू मोर specifically somewhere related to data. So I was looking for courses like marketing analytics or business analytics or things which are related to data as well as related to business, because I don't wanted to leave the business field behind and completely shift to the tech field, as well as I was not much into the tech field. So uh, कुछ एक कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा था मैं, और business analytics was a combination that I got uh, to know from several sources कि हाँ भाई ये कोर्स है जो अपन कर सकते हैं, जिसमें we can combine this with other fields or other domains, जैसे मार्केटिंग के माइनर्स लेके या फिर फिनेंस के माइनर्स लेके आप उस टाइप से उसको मोल्ड कर सकते हो, अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो उस डिग्री को. So that's what I did as well. I took a lot of business and marketing minors. Core subjects जो रहते हैं वो तो थे ही, but उसके साथ में दूसरी चीज़ें भी सीखी, और
काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने पहली बार सोचा था, पहली बार थोड़ा-सा रिसर्च किया था कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं सीखने की, और जब देखा कि हाँ, ये टूल्स हैं और हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, और हम कुछ चेंज ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं इन चीज़ों से, तो डेफ़िनिटली चेंज तो बहुत ला सकते हैं। मतलब आप कोई सी भी कंपनी में देखोगे, बड़ी, छोटी, whoever is doing data analysis or business analysis is maybe at the top or just below the top line in the company, क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो या तो टॉप लाइंस होते हैं या फिर उनको इनसाइट्स चाहिए होते हैं, और इनसाइट्स या डिसीजन से जब कोई भी डेटा को एनालिसिस करने के बाद में आगे क्या करना है कंपनी के लिए, वो बिजनेस एनालिस्ट ही बताते हैं। तो either they will tell you or either they will just give you all the insights and you will take the decision on your own। तो डिसीजन तो हमेशा टॉप लाइन पे लिए जाते हैं, तो ऐसा लगा था कि इट वुड बी अ वेरी वेरी गुड फील्ड, सो इसीलिए वहाँ से यहाँ आने का जर्नी हुआ। और इजी तो नहीं था, मतलब काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया तो इंडिया ही है, बट हाँ, इट्स अ गुड जर्नी और काफ़ी हसलिंग कह सकते हैं, बट स्टिल मतलब इट्स वर्थ इट। ओके, ग्रेट। सो मतलब अभी जो आपने फिलाडेल्फिया में हो, सो लेट, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। या अभी आप फिलाडेल्फिया में हो, राइट? यस। सो कॉलेज के बारे में and थोड़ा सा कंपनी के बारे में थोड़ा सा और बताइए। तो मैंने ड्रेक्सिल यूनिवर्सिटी से किया है एमएस, which is located basically in the heart of Philadelphia। फिलाडेल्फिया को यूनिवर्सिटी सिटी भी कहते हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, टेम्पल यूनिवर्सिटी, जेफरसन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया विच इज़ known as UPenn। It's one of the Ivy Leagues, one of the top colleges in the US as well as in the world। काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, वॉर्टन बिजनेस स्कूल का नाम सुना होगा। यस, यस। Wharton is basically just 10 minutes from my college. So, uh, 10 minutes walking distance from my college. So, it's a great place to be in। और मैंने फिलाडेल्फिया स्पेसिफिकली एज अ सिटी नहीं चुना था, मैंने यूनिवर्सिटी के हिसाब से सर्च किया था। और कुछ कोर्सेज और जो सब्जेक्ट्स मुझे चाहिए थे या जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, वो वाले सारे माइनर्स या ऑप्शंस मुझे ड्रेक्सल में ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सेकेंडली ईस्ट कोस्ट में आने का मेरा ज़्यादा मन था, क्योंकि ईस्ट कोस्ट इज़ काइंड ऑफ गुड इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोस्पेक्ट्स एंड अदर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स। यहाँ पर जहाँ पे मैं हूँ जहाँ पे मैं अभी करंटली लोकेटेड हूँ, यहाँ से न्यूयॉर्क 2 आवर्स है, वॉशिंगटन 2 आवर्स है, 2-3 आवर्स है, तो काफ़ी न्यू जर्सी लगा हुआ ही है बॉर्डर से। तो मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी ज्योग्राफिकली लोकेटेड जगह है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, नॉट वेरी चीप, मतलब बीच का है और काफ़ी अच्छी वाइब देता है। और बेसिकली यूनिवर्सिटी सिटी है, तो काफ़ी बच्चे भी हैं, तो इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन। Okay, and can you tell us more about like what sort of company it is and what is the environment in your company? So my company is basically an insurance company। They deal mostly in the Medicare Advantage plans। तो यूएस में ऐसा दो तीन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं। Medicaid and Medicare are basically the two most uh, main programs run by government। Medicare is mostly for senior citizens जो 65 प्लस होते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस कवरेज गवर्नमेंट की तरफ से होता है। उसमें काफ़ी सारे अलग अलग प्लान्स चलते हैं, जैसे पीडीपी या एमए या इस टाइप से काफ़ी सारे नाम होते हैं उनके। वो प्लान्स हर साल रिन्यू होते हैं, और जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं दे अवेल इट, दे चूज इट, और वो लोग हर साल चेंज कर सकते हैं। वो लोग समझ सकते हैं कि उनके लिए कौन सा प्लान अच्छा होगा। तो देर इज़ अ बेसिक प्लान विच इज़ गिवन बाय गवर्नमेंट, एंड उसमें कुछ एडिशंस होते हैं बाय प्राइवेट कंपनीज। So basically, we are some of the private companies who do additions on those in those plans, and we basically uh, deal with the agents और हम उसको फिर sell करते हैं। तो it's basically the whole industry is based on commission। Uh,
जितनी ज़्यादा हम सेल्स कर पाते हैं, इट्स ऑल सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि पूरा सीनियर सिटीजन को ही रहता है, मैक्सिमम मोस्टली सीनियर सिटीजन को रहता है। ऑन द अदर हैंड इट्स मेडिकेड एज वेल, तो मेडिकेड पुअर सिटीजन्स के लिए या फिर चिल्ड्रंस के लिए या दूसरे और भी सारे क्राइटेरिया होते हैं, उनके लिए होता है। वी डोंट डील मच इन मेडिकेड, आवर होल बिजनेस सेटअप इज डेडिकेटेड टू मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स। बट यस, मेडिकेड भी है जो दूसरे लोगों को कवर करता है। देयर आर मेनी प्लान्स विच द कंपनी डील्स इन, स्पेशली मेडिकेयर एडवांटेज, और जितना सेल्स होती है दे ट्राई टू ऐड मोर एंड मोर एजेंसीज अंडर देम। सो जितना एजेंसीज जुड़ेगा उतना एजेंट्स का नंबर होगा उनके पास में, और उतना ज़्यादा सेल्स होगा, एंड द मोर सेल्स द मोर कमीशन इज। तो इस टाइप से इंडस्ट्री चल रहा है। और माय जॉब इज पर्टिकुलरली टू एनालाइज all the data coming from sales or commissions or all the sites, and basically I have to report to all the downline agencies. तो हम जो हैं वो मीडिएटर हैं बेसिकली, गवर्नमेंट और जो डाउनलाइन एजेंसीज होती हैं जिनके अंडर सारे फील्ड एजेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो हमको उन सारी डाउनलाइन एजेंसीज को सीआरएम सपोर्ट एंड रिपोर्टिंग सपोर्ट और इस टाइप की चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है। तो बेसिकली मेरे पास में डेटा आता है फ्रॉम टॉप कंपनीज, और मुझे उस डेटा को फिल्टर आउट करके और अलग अलग रिपोर्ट्स बना के एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द डाउनलाइन एजेंसीज मुझे प्रोवाइड करना रहता है। समटाइम्स आई हैव टू रिपोर्ट इट टू द अपलाइन एजेंसीज एज वेल। सो इस टाइप से बिजनेस रहता है। और as I mentioned, data can be of any type. It is production data or certification data. That how many agents are certified to sell in which state or in which policies or in for which companies. There are multiple carriers like Aetna, Cigna, so things like that. So कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो एलिजिबल है सेल करने के लिए, इफ दे आर रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, इफ रजिस्टर्ड व्हाट इज द पेंडिंग अपडेट। तो हर हर किसी का डेटा होता है, और आई हैव टू रिपोर्ट इट स्मॉल जो भी डाउनलाइन एजेंसीज होती है उनको। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड आई थिंक जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आई थिंक दे वुड हैव गॉटन अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट इट। सो वन यस। मोर थिंग दैट लाइक वेरी बेसिक है, होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में होता है कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू आई एम गेटिंग, लाइक मैं कितना पैसा लगा रहा हूँ, सो हाउ मच अमाउंट दैट यू हैव टू पे इन द कॉलेज एंड हाउ मच लाइक यू आर लाइक एन ऑन एवरेज दिस इंडस्ट्री में आपको सैलरी मिलती है। तो जस्ट बेसिक आइडिया आप दे पाएंगे? हाँ, इट डिपेंड्स, डिपेंड्स a lot on situations, market factors. I mean, at this moment the market is not very but the market is not very feasible for anyone to be here in United States, or I think not only in United States, anywhere in the world. I mean, India is not affected much by the recession that is going around in the world, or any economic slowdown. I have heard from some of my friends back in India that India is also going through some of the bad phases or layoffs or something like that. But US, or countries like UK and Japan and US are, I mean, hugely, largely affected by uh, the economic slowdown, the post-COVID uh, slowdown. मुझे ऐसा लगता है कि एक ओवर हायरिंग हुई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, उसके बाद से जो फेड रेट्स वगैरह हैं वो काफ़ी बड़े हुए हैं। कंपनीज यूजुअली हायर नहीं कर रही हैं। फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि हम लोग सिर्फ उन्हीं कंपनीज में काम कर सकते हैं जो हमको स्पॉन्सर करेंगे। आई मीन, वी कैन डू वर्क इन अदर कंपनीज एज वेल, बट अदर कंपनीज आर नॉट विलिंग टू हायर अस, बिकॉज उनको पता है कि अगर हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे तो 3 साल बाद बच्चा हमको छोड़ के चली जाएगा। तो ओके। कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों को हायर करने का जो सिर्फ हमारे साथ 3 साल हो, क्योंकि वो तो अपना रिसोर्सेस और टाइम और सारी चीज़ें इन्वेस्ट करेंगे हम में। ओके। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ वही कंपनीज बचती हैं जो स्पॉन्सर करती हैं फॉर H1B वीज़ा। अभी जब भी स्टूडेंट्स आते हैं तो दे कम ऑन F1 वीज़ा, और उनको चाहिए होता है H1B वीज़ा। तो F1 वीज़ा यूजुअली 5 साल के स्पेन का मिलता है।
विच कवर्स कि आपके 2 साल की स्टडी होती है उसमें, और 3 साल का पोस्ट ओपीटी होता है, विच यू कैन यूज फॉर एक्सपीरियंस और एक्सपोजर और प्रैक्टिकल जॉब सिनेरियो, समथिंग लाइक दैट. तो अभी आई एम ऑन माई ओपीटी, आई एम यूटिलाइजिंग माई ओपीटी पीरियड. लकीली मेरे पास जॉब है, मेरे पास ऐसी कंपनी भी है जो स्पॉन्सर कर रही है, बट half of my class is still looking for jobs, and it's already 4 to 5 months post graduation. So it's not a very ideal scenario at this moment. But usually, if we talk in general terms, uh, the investment can uh, the investment can range from anywhere from 30 to 40 lakhs in INR to 70, 80 lakhs, depending on the college or city or state you are in. For example, New York is very expensive, California is very expensive. On the other hand, Texas is not that expensive. You can go for mid-sized cities like Philadelphia, which are not that expensive बट नॉट दैट चीप. तो इस टाइप की चीज़ें भी, फैक्टर्स भी हैं जो काफ़ी अफेक्ट करते हैं आपके ओवरऑल एक्सपेंडिचर को, एज वेल एज जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपको कितना फीस लग रहा है. कई बच्चे काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स निकाल लेते हैं, तो अगर वो चीज़ है तो फिर द इन्वेस्टमेंट कैन बी वेरी लेस. बट यूजुअली एक बेसिक स्कॉलरशिप जो मिलती है 70-80% बच्चों को, अगर वो चीज़ कंसिडर करें तो 30 lakhs to 80 lakhs is going to be a number for master's student, specifically in business analytics. It can go Hmm. up in other degrees like computer science or data science, Okay. but BA it's the same. और data science और computer science भी इससे ज़्यादा, मतलब 30 से 80 lakhs में 90% colleges will be included. Okay. uh, as far as the return on investment is concerned, मैं बोलूँगा कि अगर आइडियल सिनेरियो चल रहा हो, जो कि आज से Hmm. 2 साल पहले तक चल रहा था, यूजुअली बच्चों की जॉब्स लग जाती हैं, और अगर जॉब्स लग जाती है तो इट टेक्स ओनली 1 year to 2 years to यू नो गेट ऑन नेट जीरो ऑन योर इन्वेस्टमेंट. मतलब जनरली अगर बीए की फील्ड में बात करें तो द एवरेज सैलरी इज $80,000, Okay. 70 to 80 thousand dollars. At this moment, all the employers are lowballing uh, the job seekers, the employees, because the market is not very good, as I mentioned. तो अभी तो लोग कम सैलरी भी दे रहे हैं, और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वाले लोग, बड़ी बड़ी पोजीशन वाले लोग भी कम सैलरी में रोल्स उठा रहे हैं. Okay. तो अभी कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ, यूजुअली 70-80 thousand dollars पर ईयर इज गोइंग टू बी द बेसिक सैलरी. Okay. अगर आप ज़्यादा टेक्निकल कोर्सेज में जाते हो, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया या फिर डेटा साइंस हो गया, तो इट विल गो अप टू 90 to 100 lakh, 100,000 dollars, which Okay. is almost 80-83 lakhs in INR. तो Okay. उतना मिल जाता है, बट इट्स लाइक सारा बचता नहीं है यूएस में. देयर इज अ टैक्स स्लैब ओवरऑल, अगर आप Hmm. कैलकुलेट करो तो इट्स 20-25% मिनिमम टैक्स लगता है. और उसके बाद में जो खर्चे हैं, सब चीज़ों को बचा के अगर देखा जाए तो इट्स इन 1.5 year you can easily get off your loan. तो Okay. it's a good return on investment, but yes, you have to get the job at the right time. So that is Correct. something. Correct. Correct. So अगर किसी को आज लेट्स से यूएस आना है आज की तारीख में, लाइक इट इज़ Mhm, 2024, एंड लेट्स से फिलाडेल्फिया ही आना है, एंड mhm, आपके कोर्स में ही आना है. सो mhm. व्हाट काइंड ऑफ कोर प्रिपरेशन वन हैज़ टू डू? Uh, I mean, no preparation is mandatory or needed as such, but there are uh, some things if you learn before coming, or if you do such preparations before coming to US or Philadelphia, would be very helpful for you. I would suggest some points. First of all, you have to. I mean, it would be better if you get some experience back in India in the relevant fields. For ओके. example, अगर आप BBA करोगे या MBA करोगे या BCom या BTech, BE, whatever you're doing,
अब उसके बाद में 1 या 2 साल कोई सी भी अच्छी कंपनी में काम करो। आई वुड सजेस्ट मिनिमम 2 इयर्स तो करो, क्योंकि मोस्टली यहाँ एमएस करने के बाद में जब आप कंपनीज के इंटरव्यूज में जाते हो तो जो जो क्राउड है जो ढूंढ रहे हैं जॉब्स, दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड। कई लोग हम्म, ऐसे हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और जॉब्स अभी उतनी है नहीं, तो अगर बेसिकली सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो अगर डिमांड कम है तो आपको एटलीस्ट ऐसा होना पड़ेगा मार्केट में जो आप कहीं अलग स्टैंड कर सको उस एग्जिस्टिंग क्राउड से। तो टेक सम एक्सपीरियंस बैक इन इंडिया। उसके अलावा आप टूल्स और लैंग्वेजेस सीख सकते हो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम कॉमर्स और बिजनेस बैकग्राउंड। लर्न पाइथन, सीक्वल, आर इज ऑल्सो एन लैंग्वेज। आर सीख सकते हो, और कुछ ओके। सॉफ्टवेयर बीआई टूल्स हैं जैसे टेबली और पावर बीआई, आप वो भी सीख सकते हो। तो इस टाइप की प्रिपरेशन अगर आप पहले से कर लोगे तो इट वुड बी वेरी इजी टू बी हियर। एक चीज़ और है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे कोर्सेज डिजाइंड हैं, बट लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी इज नीडेड। आपको खुद से बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हाथ पकड़ के आपको कोडिंग या ये सब चीज़ें नहीं सिखाते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स खूब डालने पड़ेंगे। तो अगर आप पहले से सीख के आते हो तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में इतना टाइम नहीं मिलता है जो आप खुद सेल्फ स्टडी पे दे पाओ। ओके। यू हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। घर से लेके आपको पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं वो मैनेज करनी होती हैं, उसके साथ साथ असाइनमेंट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं। तो इतना टाइम आप दे नहीं पाते हो सेल्फ स्टडी पे। तो अगर आप पहले से सीख के आओगे तो दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो जैसे आपने बोला पहले सीख के आओगे, सो आप मेरे पास आए थे जिसमें अपन ने, आपको याद होगा अपन ने टेबलू और एसक्यूएल पढ़ा था, पीएल एसक्यूएल भी पढ़ा था। हम्म। सो हम्म। वो कितना काम आया एक्चुअली में, कुछ काम आया या नहीं आया? नहीं, सीक्वल टेबल्यू दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आई, हम्म, क्योंकि बीआई टूल्स तो यूज़ होते ही होते हैं, कोई सी भी जॉब कर लो आप। ओके। क्योंकि आप बिजनेस एनालिटिक्स की फील्ड में हो, तो अगर बीआई टूल्स नहीं यूज़ करेंगे तो दे विल डू एनालिसिस ऑन एक्सेल। ओके। वो भी एक तरीके से कंप्लीट टूल है, मतलब एक्सेल में तो सब कुछ किया जा सकता है, तो एक्सेल में भी अगर करना है और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं क्योंकि आपने बीआई टूल्स चला रखे हैं या फिर आपने एक्सेल पे भी बीआई बना रखा है, आपने कुछ रिपोर्ट्स डैशबोर्ड्स बना रखे हैं एक्सेल पे भी, हम्म। तो दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। तो काफ़ी ज़्यादा काम आया। अभी भी कंपनी में मैं पावर बीआई यूज़ कर रहा हूँ, और काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल है। ओके। दूसरा रहा सीक्वल, तो सीक्वल तो आप कहीं भी चले जाओ, कोई कोई सी भी जॉब में चले जाओ, 90% जॉब्स में आपको सीक्वल यूज आएगा। ओके। तो बेसिक कंसेप्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई मुझे, क्योंकि मतलब मैंने स्कूल में पढ़ी थी आखिरी बार, उसके बाद से 4-5 साल का गैप था, उसके बाद आपके साथ में पढ़ा पूरा, तो काफ़ी फ्रेश था सब कुछ। और यहाँ पे जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स हुए इवन इन कॉलेज, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स वगैरह जो बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स हुए जिसमें हमारे पास में कंपनीज का डेटा था, और ओके। हमको एक्चुअल में एनालिसिस करके देना था, तो उसमें हमने पूरा एनालिसिस सीक्वल टेबली और इन सारी चीज़ों पे ही किया था। तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके। बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि पाइथन, right now Python is the most relevant language in BA. I don't know if आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर कोई दूसरी लैंग्वेज टेक ओवर कर ले, बट अभी तो पाइथन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है बिजनेस एनालिटिक्स में। तो अगर वो चीज़ आप अच्छे से सीख लो तो इट्स वेरी गुड। और सीक्वल तो होना ही चाहिए, मतलब एसक्यूएल इज़ द मोस्ट एडप्टिव लैंग्वेज, हर कहीं हर कोई यूज़ कर रहा है। नॉट अगर अगर वो लोग डीप एनालिसिस के लिए नहीं कर रहे होंगे तो एटलीस्ट दे आर डूइंग ईडीए ऑन इट। जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होता है, हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहा है उस पे, उसके बाद में डिसीजंस ले रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं डेटा को कहीं, बट वो कहीं ना कहीं उसको यूज करेंगे। तो यस, दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ओके। सो जितना भी मुझे, मैंने आपको सुना उससे मेरे को दो चीज़ें और पूछनी है इसके बारे में बिफोर वी कैन टॉक समथिंग एल्स। कि एक तो आपने हम्म। बात करी सेल्फ स्टडी की, हम्म। कि आपको वहाँ जाके सेल्फ स्टडी काफ़ी करना पड़ता है। हम्म। सो लाइक हाउ मच इट इज़ एक्चुअली
रिक्वायर्ड लाइक ऑन लेट्स से आवर बेसिस पे कितना आपका कॉलेज का टाइम होता था और कितना टाइम खुद के लिए बचता था आफ्टर ऑल द असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग, पहला। दूसरा, जैसे आपने बात करी अलग अलग टूल्स की, हम्म। आपने एक्सेल की बात करी, आपने पावर बीआई की बात करी, आपने ऐसा हम्म। बात करी कि सीक्वेंस, जो आपका सीक्वल है या प्रोसीजर लैंग्वेज वाला एसक्यूएल है, वो सब की बात करी। पर इसके अलावा भी कोई ऐसा कोई टूल है जो आपको पता होना, इनफैक्ट आपने एक्सेल की भी बात करी, सो इसके अलावा हम्म। भी कोई टूल है जो बिजनेस एनालिस्ट को चाहिए होता है? जैसे कि क्या आर आनी चाहिए? आपने पाइथन पर टच करा, वैसे आर आनी चाहिए क्या? आई मीन व्हाट आई बिलीव इज कि स्किल्स आर ट्रांसफरेबल, तो एज फार एज बीआई टूल्स आर कंसिडर कंसर्न, कोई भी एक टूल सीख सकते हो आप, वेदर इट इज पावर बीआई और टेबल्यू, और देर आर सर्टेन अदर टूल्स लाइक डोमो और माइक्रो स्ट्रेटजी और क्लिक व्यू। काफ़ी सारे टूल्स हैं, कुछ कुछ कंपनीज दूसरे टूल्स यूज़ करती हैं। uh, कोई सा भी एक बीआई टूल सीख लो और द स्किल इज ट्रांसफरेबल फॉर ऑल बीआई टूल्स। दूसरा, एज फार एज लैंग्वेजेस आर कंसर्न, आप कोई सी भी एक लैंग्वेज, जैसे आई मीन सीक्वल इज स्लाइटली डिफरेंट, बट इफ यू लर्न पाइथन और आर एनी अदर लैंग्वेज, even if you learn java or something else, it will be very easy for you to adopt to other languages. तो अभी ऐसा है कि most of the companies use only python and sql. I mean, I would say 60% companies only use sql, ओके 20% companies will use python as well as sql, और 10 15 या 20% कंपनीज होंगी जो आर भी यूज करती होंगी। बेसिकली आर इज मोर फॉर डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, बट कुछ कुछ कंपनीज बिजनेस एनालिस्ट को भी इस टाइप के रोल्स देती हैं जिसमें आपको आर यूज़ करना पड़े, जिसमें मोस्टली जैसे टाइम सीरीज फोरकास्टिंग हो गया या फिर प्रेडिक्टिव मॉडलिंग हो गया, जिसमें आपको कोई चीज़ फोरकास्ट करनी है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मॉडल्स बन रहे हैं लीनियर रिग्रेशन के या इस टाइप के, तो उसमें या तो पाइथन या फिर आर ज़्यादा एफिशिएंट होती है। R is basically statistics based लैंग्वेज, उसमें सारे जो पैकेजेस और लाइब्रेरीज हैं बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स ड्रिवन है। तो जब ये लीनियर रिग्रेशन और कोरिलेशन और इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, तो आर में जो कोड लिखाते हैं वो बहुत छोटे छोटे कोड होते हैं, और उसमें उतना काम हो जाता है जो पाइथन में 20 25 लाइन में होगा। ओके बट स्टिल आई मीन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कुछ कंपनीज ओपन भी होती हैं, आपको जो यूज करना है करो, क्योंकि अगर कहीं पे आर है तो पाइथन भी होती ही है जनरली। तो एक लैंग्वेज भी अगर सीख ली तो इतना कुछ मैटर नहीं करता कि आपको दूसरी आती है नहीं आती है। और दूसरी आप इजीली सीख सकते हो साथ साथ में, बट एटलीस्ट एक तो आनी चाहिए। ओके और अदर टूल्स भी यूज करते हैं, दैट इज ट्रू। कुछ कुछ लोग इन हाउस सॉफ्टवेयर्स भी यूज करते हैं जिसमें वो लोग खुद की कुछ लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं या फिर कुछ अलग ही बनाई होती है उनने। तो इस टाइप की भी कुछ कंपनीज होती हैं, बट हाँ, इससे ज़्यादा लैंग्वेजेस मैंने नहीं सुना। मोस्टली तो यही यूज़ हो रही हैं, बट कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो अलग यूज़ करती हैं। बीआई टूल्स भी 90% तो जो मैंने नाम लिए वही हैं, बट हो सकता है कि कुछ कुछ लोग अलग अलग भी यूज़ कर रहे हो। ओके। एंड सेल्फ स्टडी के बारे में थोड़ा सा आप इलाबोरेट करेंगे, और लाइक कितना टाइम बचता सेल्फ था? स्टडी का टाइम तो ऐसे ज़्यादा बचता नहीं है। आई मीन इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कंडीशन। अगर और एनीवेज आई मीन, फॉर एग्जांपल आपने लोन तो ले रखा है, बट यूजुअली बच्चों का ये मोटिव होता है कि यार पार्ट टाइम जॉब करना है, और इट्स वेरी यूजफुल। मतलब पार्ट टाइम जॉब करने से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो, काफ़ी फिजिकली चैलेंज और डिमांड करने वाला जॉब होता है पार्ट टाइम। यहाँ पर जो 90% जॉब्स जो होते हैं यूएस में पार्ट टाइम जॉब्स, उसके साथ में जब वो करते हो आप, तो वो आप थक इतना जाते हो कि आप आने के बाद में मेंटली और किसी चीज़ पे ध्यान लगा नहीं सकते, इवन इफ यू हैव टाइम। अगर आपने सुबह 12 बजे से 6 7 बजे तक की कोई शिफ्ट करी है कहीं पे पार्ट टाइम जॉब में, और इफ यू आर कमिंग बैक फ्रॉम दैट जॉब, आप रात को भी ज़्यादा कुछ करने लायक बचते नहीं हो। तो बेसिकली सेल्फ स्टडी का टाइम बच जाएगा थोड़ा बहुत, बट बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा। आपको इधर असाइनमेंट्स के साथ साथ ही वो चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी कि हाँ भाई कैसे करना है ये चीज़, या फिर ये चीज़ कैसे होगी, और थोड़ा बहुत तभी सीख लिया। ओके बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी का टाइम मेरे लिए तो नहीं बचा। बट अगर ऐसे इन इन टर्म्स ऑफ आवर्स बात करें तो
मोस्ट टू मोस्ट 1 hour to 2 hour आप पर डे निकाल सकते हो, ओके। नॉट मच देन दैट। बट ऐसा है कि जैसे मेरा प्रोग्राम 1.5 years का था, एंड आई हैव टू लुक फॉर इंटर्नशिप्स व्हेन माय प्रोग्राम वाज 3 or 4 months इन बिटवीन, और उसके बाद में जब इंटर्नशिप का टाइम खत्म हुआ तो आई हैव टू लुक फॉर जॉब्स व्हेन माय प्रोग्राम वाज समवेयर अराउंड 12 months। ओके। तो 18 months के प्रोग्राम में आप ऐसा समझ लो कि 16 months और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम 14 months तो आप जॉब्स ढूंढ रहे होते हो, जॉब सर्च करना है। तो जॉब सर्च इज ऑल्सो अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस। आपको उसमें लोगों को लिंक्डइन पे रीच आउट करना पड़ेगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, 10 तरीके से आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, जॉब्स ढूंढनी पड़ेगी, और रोज की आपको कई एप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको कोई एक जॉब मिलेगा या एक इंटर्नशिप मिलेगी। तो उन सब चीज़ों के साथ में क्योंकि टाइम बचता है, तो वो चीज़ करना ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, ना कि सेल्फ स्टडी करना और ये सीखना कि भाई कॉलेज में कैसे क्या चीज़ें होंगी। क्योंकि एट द एंड व्हाट मैटर्स इज यू हैव अ जॉब और इंटर्नशिप और नॉट। तो ओके। इसलिए सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। बट हाँ, अगर इन टर्म्स ऑफ आवर्स बात करें तो 1 hour पर डे यू कैन मैनेज टू डू सेल्फ स्टडी। ओके। सो मेरा एक क्वेश्चन का आपने ब्रीफली आंसर तो दिया, जो मेरा एक क्वेश्चन था कि यूएस में जॉब ढूंढने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें स्टेप लेनी पड़ेंगी, सो आपने लिंक्डइन टच किया था। इसके अलावा और कोई एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर आप कर सकते हो? कितना एल्यूमिनाई का वहाँ पर हाथ रहता है, या कितने प्रोफेसर्स हेल्प करते हैं वहाँ पर, यूनिवर्सिटी कितना हेल्प करती है? यूनिवर्सिटीज तो नेक्स्ट टू नो हेल्प करेंगी आपकी, आपको ओके। एट मास्टर्स लेवल एटलीस्ट। अंडर ग्रेड में या बैचलर्स में करती भी हैं थोड़ा बहुत। मास्टर्स लेवल में बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर, आई मीन आई वुड से आउट ऑफ 1000 यूनिवर्सिटीज देयर विल ओनली बी 10 or 15 यूनिवर्सिटीज जहाँ पे उनका कोई प्लेसमेंट ड्राइव हो रहा होगा, या फिर जहाँ पे उनके इंडस्ट्री में कनेक्शन है तो वो डायरेक्टली जॉब्स लगवा रहे हैं। ओके। अदरवाइज बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस टाइप का कर रही हैं। और दूसरा ये है कि आपको सब कुछ खुद ही करना है, फॉर इंटर्नशिप और फॉर जॉब्स आपको खुद से ही ढूंढना है। बहुत से बहुत व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक गुड कनेक्शंस विद योर प्रोफेसर्स, विद योर कलीग्स, या फिर जो दूसरे प्रोफेसर्स हैं। आप अपना नेटवर्क अच्छा बिल्ड कर सकते हो, और उस नेटवर्क के थ्रू आपको कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन या फिर रेफरल मिल सकता है इन एनी कंपनी। दिस इज व्हाट एवरी स्टूडेंट ट्राइज टू डू, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ट्राइज टू डू। बट उसमें भी ऐसा है कि आपका नेटवर्क इतना अच्छा हो जाना चाहिए लोगों से कि वो आपको जॉब्स या रेफरल्स के लिए ऑफर कर दे। ओके। सो उसमें भी नेटवर्किंग के लिए आप क्या करते हो वहाँ पर, मतलब आपने क्या किया या यूजुअली लोग क्या करते हैं? तो यूजुअली देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। पहले तो जैसे अगर आप जॉब प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो लिंक्डइन इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ जॉब सर्च। काफ़ी काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है और उस पे सब कुछ किया जा सकता है। आई मीन फ्रॉम नेटवर्किंग, फ्रॉम रीचिंग आउट टू पीपल, रिक्रूटर्स, हर किसी को आप मैसेज कर सकते हो, ढूंढ सकते हो कौन सी कंपनी है क्या है, और उसमें भी हर किसी को ढूंढ सकते हो। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो उसमें आप सर्च कर सकते हो जॉब्स। उसके अलावा कई सारे जॉब प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक इंडीड इज़ वन ऑफ देम, ग्लास डोर है, और मॉन्स्टर है, जिप रिक्रूटर है। देर आर सम अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल नेम्ड हैंडशेक और करियर शिफ्ट, और इस टाइप के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ओके। आप हर किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर जॉब्स ढूंढ सकते हो। 90% द जॉब्स विल बी सेम, बट 10% जॉब्स जो होती हैं वो थोड़ी थोड़ी हर प्लेटफॉर्म पे अलग होती हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप कंपनीज की लिस्ट निकालो जिसमें आपको जाना है, आप डोमेन पकड़ लो, या फिर आप टॉप 500 कंपनीज निकालो, या कुछ भी आपकी इंटरेस्ट वाली कंपनीज निकालो, और एक एक करके हर किसी के करियर्स पेज पे जाओ, और यू ओके। सर्च यू मैन्युअली सर्च कि हाँ भाई बिजनेस एनालिटिक्स की या फिर किसी और डोमेन की जो आप ढूंढ रहे हो उसकी जॉब है या नहीं है। क्योंकि समटाइम्स कंपनीज डू पोस्ट ऑन देयर वेबसाइट बट दे डू नॉट पोस्ट ऑन एनी ऑफ द जॉब प्लेटफॉर्म्स। ओके। तो दिस इज वन थिंग। उसके बाद दूसरा ये है कि यू हैव टू सेट अप कॉल्स, यू हैव टू डू नेटवर्किंग एज मच एज पॉसिबल। आपको कंपनी में जो ऑलरेडी बीए हैं या जो मैनेजर्स हैं या इस टाइप के लोगों के साथ में कॉल सेटअप करने पड़ेंगे, कॉफ़ी चैट इफ़ यू कैन डू, लिंक्डइन पे मैसेज करके, या फिर कहीं भी कोई भी कॉन्टेक्ट पुल करके आपको कैसे भी उनसे मिलना पड़ेगा, either virtual or physical, or it doesn't matter, but you have to meet them for 15 minutes or half an hour or 1 hour, whatever works for you.
इस टाइप की मीटिंग्स आपको एक एक बंदे के साथ में 3 3 4 4 बार करनी पड़ेगी, तब आपका एक ऐसा कॉन्टेक्ट बिल्ड होता है जो ईदर थ्रू हिम और ईदर थ्रू देयर कॉन्टेक्ट वो कन्वर्ट हो जाए ओके। इन अ जॉब प्रोस्पेक्ट। तो दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। आई वुड सजेस्ट कि ये करना हमेशा के लिए बेनिफिशियल होता है, नॉट ओनली फॉर समवन हु इज जस्ट ग्रेजुएटिंग और हु इज फ्रेशली ग्रेजुएटेड। कभी भी आपके नेटवर्क्स काम आते हैं। आई हैव राइट नाउ आई हैव अ नेटवर्क ऑफ 100 200 पीपल जो मैंने सिर्फ यूएस आके बनाया। ग्रेट। अभी मुझे वो जॉब लगने में यूज नहीं आया क्योंकि इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। आई वुड से मैंने भी थोड़ा लेट स्टार्ट किया। मैंने भी जब 5 7 महीने हो गए उसके बाद स्टार्ट किया, क्योंकि यूएस आते साथ में सेटलिंग होने में टाइम लगता है, समझ ही नहीं आता है क्या चल रहा है। जब तक क्लासेस और असाइनमेंट से पिकअप करो आपको फिर समझ में आता है कि नहीं, नेटवर्किंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो तब स्टार्ट किया, बट अभी भी मेरे पास में वो सारा नेटवर्क है and अभी भी मैं उन सब लोगों को कभी कभी टच करता रहता हूँ। ओके। तो इस टाइप की नेटवर्किंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉर्मल जो जॉब जॉब एप्लीकेशन है वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी अलग अलग कंपनीज में जो आपकी पसंद की हैं। देयर आर टू अप्रोचेस राइट नाउ इन द मार्केट, वन इज क्वालिटी, वन इज क्वांटिटी। कुछ बच्चे होते हैं जो क्वांटिटी अडॉप्ट करते हैं, मतलब वो दिन की 50 50 100 100 एप्लीकेशंस कर रहे हैं और बाय द टाइम दे फाइंड अ जॉब दे वुड बी ऑन अ नंबर समवेयर अराउंड 10,000 एप्लीकेशंस, 15,000 एप्लीकेशंस। तो अ, बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि इतना इतने नंबर्स हिट करना इज़ नॉट नॉट वेरी ईज़ी विद मैनेजिंग ऑल योर आपको खाना भी खुद ही बनाना है, आपको सारी चीज़ें खुद करनी है, तो उसके साथ में ये सारा करना इट्स नॉट ईज़ी। और दूसरा है क्वालिटी वाला, जिसमें आप हर कंपनी और हर एप्लीकेशन के हिसाब से आपका रेज्यूमे चेंज कर रहे हो, हम्म। सीवी डाल रहे हो आप हर हर एप्लीकेशन के साथ में, और मतलब एक एक एप्लीकेशन पे आप आपका 100% दे रहे हो। तो फिर आपका जो जो काउंट मैंने अभी आपको 5 to 10,000 बोला, वो घट के आपका 1,000 2,000 पे रह जाएगा, बट वो क्वालिटी बेस्ड हो जाएगा। तो किसी के लिए क्वालिटी काम कर जाता है, किसी के लिए क्वांटिटी काम कर जाता है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अप्रोचेस। यू हैव टू ट्राई टू फाइंड अ वे विच इज अ बैलेंस ऑफ ऑल। ओके। सो जस्ट रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि जैसा आपने बोला कि रिज्यूम, तो रिज्यूम मेकिंग के लिए आपने किसी से हेल्प ली थी, कोई एप्लीकेशन एआई यूज़ किया या क्या किया? थोड़ा सा ब्रीफली बताओ उस पर। रेज्यूमे के भी काफी सारे टूल्स हैं। रिज्यूम में आप एक रेज्यूमे वर्डिट करके है, एक जॉब स्कैन होता है शायद तक, 2 3 टूल्स हैं। वहां पे आप आपके रेज्यूमे को रेट करवा सकते हो और सजेशंस ले सकते हो कि हाउ टू मेक अ गुड रेज्यूमे। उसके अलावा टेम्पलेट्स काफी सारे अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन ही मिल जाएंगे आपको। हार्वर्ड का भी है कुछ टेम्पलेट, और भी अदर टेम्पलेट्स आर देयर जो आप फॉलो कर सकते हो। जनरली यूएस में जो रेज्यूमे का फॉर्मेट चलता है, ओके। दैट इज वेरी बेसिक। इट्स वन वन पेज रेज्यूमे अनटिल एंड अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 years, यू हैव टू स्टिक ऑन वन पेज रेज्यूमे। ऐसा बोला जाता है, आई मीन इट्स अप टू यू, बट सजेस्टेड यही रहता है। और वन पेज रेज्यूमे ऑल्सो शुड बी इन अ वाइट बैकग्राउंड, और एकदम सिंपल सा प्लेन वाइट पेज होना चाहिए A4 साइज का, जिसमें ऊपर आपका टाइटल लिखा हो और उसके बाद में नीचे आपके सारे सेक्शंस हो, अलग अलग एक्सपीरियंस, और ये अलग अलग सेक्शंस हो। तो इतना सिंपल रेज्यूमे चलता है क्योंकि यहाँ पर 90% कंपनीज आर यूजिंग ATS। ATS is basically the preliminary screening which stops you from getting directly to the recruiter's eyes। तो फिल्टरिंग लगाती है कई सारी कंपनीज कीवर्ड्स पे। अगर वो कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में नहीं मिल रहे हैं तो वो ATS ऑटोमेटिकली बाहर कर देगा। ओके। तो अगर 10,000 एप्लीकेशंस गई हैं एक जॉब पे, तो उसमें से जो जो भी टैलेंट एक्विजिशन वाला होगा, जो इनिशियल स्क्रीनिंग वाला बंदा होगा कंपनी का, उसके पास में आप सिर्फ 1,000 या 2,000 एप्लीकेशंस पहुंचेगी। और फिर 1,000 और 2,000 में से भी वो जो हायरिंग मैनेजर है उसको काफ़ी सारी उसमें से 20 50 फॉरवर्ड करेगा और उसमें से कॉल्स 10 15 को जाएगा। तो ओके। इस टाइप से सिनेरियो रहता है। तो आपको रेज्यूमे, इसीलिए मैंने जो बोला कि क्वालिटी वाला भी कई लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि और ये पता नहीं चलता है कि आपका ATS पास हुआ या नहीं हुआ। करेक्ट। इट्स ऑल कि आप कितना क्लोज जा सकते हो, और उसके बाद भी किसी को पता नहीं कि वो हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि मैंने कई बार इस टाइप से भी करके देखा कि मैंने वर्ड टू वर्ड वर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर दिया रेज्यूमे, उसके बाद भी
रिजेक्ट आए हैं। तो इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज एटीएस यूज ही नहीं करती हैं, वहाँ कंप्लीटली ह्यूमन इंटरेक्शन है। कुछ कंपनीज एटीएस यूज करती भी हैं, तो पता नहीं वो लोगों ने क्या सेटअप किया है, या फिर किसी को नहीं पता कि वो रिज्यूमे क्यों क्लियर नहीं हुआ, या फिर वो एटीएस में बाहर हुआ, या फिर एक्चुअल में कोई रिक्रूटर ने उसको पढ़ के बाहर कर दिया। ओके। एक चीज ये भी रहती है कि यहाँ बोलते हैं कि इट्स अ 6 सेकेंड टाइम वन पर्सन स्पेंड्स ऑन व्यूइंग योर रेज्यूमे। तो आपको आपका रेज्यूमे ऐसा बनाना है कि 6 सेकंड में आदमी को आपका रेज्यूमे ऊपर से नीचे तक समझ में आ जाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डीप पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, बहुत लेंदी पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, शॉर्ट पॉइंट्स होने चाहिए, 1 लाइन और 2 लाइन मैक्सिमम। और साफ होना चाहिए काफ़ी रेज्यूमे, बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि सामने वाले को देखते साथ में चीज़ें समझ में आ जाए। करेक्ट। अ, तो इस टाइप की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं दैट यू शुड फॉलो, और लाइक यू हैव टू फॉलो टू गेट इनटू द मार्केट। बट हाँ, it's a very I mean tricky process. ओके ओके। सो अगर मैं इस बात को अगर थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली बात करूं तो देखा जाए तो रिज्यूम का सिलेक्शन इज लाइक यू कैन ओनली थिंक अबाउट 2 to 3% एट मैक्सिमम फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। अगर 100 Uh, लोग अप्लाई करेंगे तो शायद 2 या 3 का ही एक्चुअली में कॉल आएगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही। मतलब अगर अभी आप लिंक्डइन खोल के देखोगे तो आपको एक एक, आप बिजनेस एनालिस्ट टाइप करो जस्ट जॉब सेक्शन में इन लिंक्डइन, जो जो टॉप टॉप 100 जॉब्स भी दिखेंगी ना आपको, उनमें एप्लीकेंट्स दिखाता है वो कि अबाउ 500 और 1000, आपको 90% में मोस्ट मोर देन 1000 दिखेगा। ओके। तो और ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है आपको। कंपनी करेक्ट। वाले सेम जॉब हर प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं, और दे आल्सो पोस्ट इन देयर ओन वेबसाइट। तो उसका तो काउंट है ही नहीं कहीं कि हम्म। उनकी वेबसाइट से कितने लोगों ने क्लिक करा। लिंक्डइन दे रहा है कि उसकी वेबसाइट पे जाके उस पे अप्लाई पे कितने लोगों ने क्लिक करा, तो वो बता रहा है कि हाँ 1000 प्लस क्लिक्ड ऑन द अप्लाई। उसके बाद कितने लोग कर रहे हैं एक्चुअल में, दैट इज ऑल्सो अ मिस्ट्री। मतलब ओके। अप्लाई करने के बाद में लोग डाल भी रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं एप्लीकेशन, बट 90% डाल रहे हैं। तो अगर अगर ऐसा मान के भी चले कि हाँ 100% नंबर इज ट्रू, तो भी मुझे एक रिजेक्ट आया था एक कंपनी से जिसमें लिखा था कि अ, हम लोगों के पास में ऑलमोस्ट 50,000 एप्लीकेशन आई। तो इस ओके। टाइप से कुछ रिजेक्ट उनने मुझे भेजा था। ऑटोमेटेड ही था ईमेल, बट उसमें उन लोगों ने सेट किया था कि हाँ भाई इतनी एप्लीकेशन आई है हमारे पास में। और फिफ्टी ओके। थाउजेंड एप्लीकेशन वो भी एक बिजनेस एनालिटिक्स की जॉब के लिए। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब काफी कंपटीशन है, और उसमें आपको अपना रेज्यूमे गेट थ्रू करना, इट्स डिफिकल्ट। ओके। दैट्स ग्रेट। मतलब ये बहुत अच्छा नॉलेज रहेगा जो भी इसको अगर सुनेगा समझेगा। वन मोर थिंग इज लाइक जैसे कि आप इंदौर में थे, देवी अल्य विश्वविद्यालय में थे, हम्म और इन जनरल आपने यूएस जाने के पहले जितनी भी पढ़ाई है वो अपन ने इंडिया से ही करी है, करेक्ट? हम्म हम्म। सो आप क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को भी और फैकल्टीज़ को भी? लाइक आई वाज देयर विद यू इन दी एज अ विजिटिंग फैकल्टी एट आईआईपीएस आल्सो। सो मेरा जैसा अप्रोच रहता है इन जनरल कि आई ट्राई टू डू इन ए मोर इन ए प्रैक्टिकल वे। तो क्या वहाँ पर भी वैसे होता है क्या? टीचिंग मेथोलॉजीज में क्या चेंज है? तो क्या सजेशन आप फैकल्टीज़ को भी दोगे और स्टूडेंट्स को भी दोगे कि क्या बेस्ट हो सकता है यूएस जाने के पहले समझे या यूएस आने के बाद भी उस पर अप्लाई करना चालू करें? काफी ज्यादा डिफरेंस है, आई वुड से, इन द मेथोडोलॉजी इटसेल्फ। मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि यहाँ का ऑब्वियसली बेटर है। जो स्टाइल स्टाइल है यहाँ पे टीचिंग का, या फिर स्टडी करिकुलम जो डिजाइन है, 99% तो यही है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बेस्ड है। इंडिया में अभी भी पेन पेपर वाली एग्जाम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। जैसे मैंने यहाँ एमबीए तो नहीं करा, मेरा कोर्स मोस्टली टेक्निकल था, तो उस टाइप से कंपैरिजन नहीं कर सकता, बट मुझे पता है कि यहाँ के एमबीए के कोर्सेज में भी कोई बहुत ज़्यादा पेन पेपर पे एग्जाम्स नहीं होती हैं। 90% केस स्टडीज ही होंगी, और केस स्टडीज होने के बाद में उसको कोई आपको एक पेपर पे नहीं देगा कि यार आप लिख के और इसको सॉल्व करो। ओके। वहाँ पर मैंने एमबीए करा, वहाँ पे मैंने बीबीए करा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ते हैं टू जस्टिफाई कि हाँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई, विच इज़ आई थिंक नाउ कि इट्स नॉट गुड।
क्योंकि बच्चा आज की डेट में 23 आउट ऑफ 24 आवर्स, और आई वुड से 24 आउट ऑफ 24 आवर्स दे आर एक्सेसिबल टू इंटरनेट, दे Yes. हैव द एक्सेस टू द इंटरनेट। तो इतना कुछ मैटर नहीं करता कि आपको ये सारे कंसेप्ट्स याद रहें, क्योंकि आपके पास में सारा एक्सेस है। इफ यू वांट टू गेन एनी एनी नॉलेज, और लाइक आपको कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कंसेप्ट ढूंढना है, आपको कोई कॉडलर की स्टडी पढ़नी है, आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ने हैं, आपको कुछ भी पढ़ना है, आप एक सेकंड में गूगल पे सर्च करके उसको पढ़ सकते हो। तो आई वुड से कि ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए, एक बार तो आपको याद होनी चाहिए, बट उसका जो नॉलेज है वो इस तरीके से टेस्ट किया जाता है कि उसकी एग्जाम ले ली जाती है। इससे ज्यादा अच्छा ये है कि एग्जाम से ज्यादा अच्छा है कि उसको फाइनल उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक दिया जाए, और उसको बोला जाए कि भाई हाँ, आप प्रेजेंटेशन बना के लाओ और आप प्रेजेंट करो, उसमें आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से इंटीग्रेट करो। तो जैसे मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर माइनर एक सब्जेक्ट लिया था, जिसमें ओबी का कोई रिलेटेड सब्जेक्ट था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द नेम, बट हाँ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड था। उसमें उनने कुछ 10-15 कंपनीज की रियल लाइफ केस स्टडीज उठाई थी हार्वर्ड की, जैसे जूम की उठाई थी, फोर्ड की उठाई थी, या अलग अलग कंपनीज की उठाई थी, जो पेंडेमिक के टाइम में या फिर अलग अलग टाइम में क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे किया उन कंपनीज ने, या फिर नहीं किया तो वो लोग इसीलिए फेल हुए। तो या तो Okay. फेलियर्स की उठाई थी, या फिर हाउ दे डिड द क्राइसिस मैनेजमेंट, उस टाइप की उठाई थी। कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव केस स्टडीज उठाई थी, और काफी बड़ी बड़ी केस स्टडीज थी, 20-20 पेजेस की, और इस टाइप की केस स्टडीज थी। वो पढ़ के हमें, और ये सारा करने के बाद में उनने शुरू की 1-2 क्लासेस हमको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कंसेप्ट्स और एग्जांपल्स और ये सारी चीजें बताई थी। नाउ व्हाट दे वांटेड कि ये केस स्टडीज पढ़ो और आप पूरा इसका एनालिसिस करके लाओ। इट शुड कंटेन स्वॉट एनालिसिस और इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग अबाउट द केस स्टडी। और आप मतलब आपकी, जैसे उन्होंने ग्रुप्स डिवाइड कर दिए थे, और उस ग्रुप में एक ग्रुप के पास में एक केस स्टडी थी, एक कंपनी थी। अब आपको उस कंपनी के इन आउट एवरीथिंग, आपको हिस्ट्री से लेके, और उनने किस तरीके से उस टाइम पे वो चीज़ मैनेज करी, उस टाइम पे वो चीज़ उन लोगों ने क्या टेक्निक्स यूज करी, क्राइसिस को कैसे मैनेज करा, या चेंज अगर लाना था कंपनी में तो चेंज को कैसे मैनेज करा। कई सारी कंपनीज चेंज मैनेजमेंट में फेल हो जाती है, कई सारी कंपनीज अगर दूसरे सॉफ्टवेयर्स पूरे इंटीग्रेट करने होते हैं थ्रू आउट द कंपनी, उसमें फेल हो जाती हैं। तो बड़े बड़े फेलियर्स के एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। तो उस टाइप की केस स्टडीज पे मैनेजमेंट के कंसेप्ट को जोड़ के और प्रेजेंटेशंस देने का बोला जाता है। तो ये समझ में आए कि हाँ ये वाला कंसेप्ट है तो ये एग्जैक्टली किस जगह पे काम आ रहा है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जैसे अलग अलग मॉडल्स हैं, तो ये वाला मॉडल किस टाइप से इंटीग्रेट किया गया है इसमें। तो इस टाइप का एनालिसिस यहाँ पे सब्जेक्ट्स में होता है, वेदर इट इज थियोरेटिकल। और अगर प्रैक्टिकल है तो जैसे मुझे याद है मैंने बीबीए में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था। Okay. रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये सारी चीजें नॉर्मली पेपर पे सॉल्व करी थी। मुझे नहीं पता अभी इंडिया में क्या हो रहा है एमबीए कॉलेजेस में, बीबीए कॉलेजेस में, बट यहाँ पर ये सारी चीजें या तो एक्सेल पे करवा रहे हैं या फिर आपको पूरा कोडिंग पे करवा रहे हैं। Okay. और रियल लाइफ आपको डेटा दे रहे हैं और उसके बाद में बोल रहे हैं कि इस पे रिग्रेशन रन करो और हमको बताओ कि आगे क्या आर वैल्यू है इसकी, या फिर क्या इसका प्रिडिक्शन होगा, क्या फोरकास्ट निकाल सकते हैं अपन रिग्रेशन रन करके। तो वहां पर रिग्रेशन तो सिखाया था मुझे, मुझे कोरिलेशन भी सिखाया था, मुझे ये नहीं बताया था कि इसका यूज करके हम, मतलब ये बताया भी होगा तो ये मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि वो Correct. थ्योरी में बताया था कि इसके थ्रू हम फोरकास्ट कर सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि अ, प्रैक्टिस करने को कुछ मिला ही नहीं, ना एक्चुअल मिला डेटा ही नहीं, मिला। एग्जैक्टली exactly। तो हम्म, वहां पर मतलब, और डेटा इज नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, आपको बहुत सारे ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर कॉलेज वाले खुद से कहीं से कुछ खरीद भी सकते हैं, इतना कुछ वो नहीं है। तो या फिर उनको किसी कंपनी से कोलैबोरेट करना चाहिए कि यार आप आओ, हम फ्री में आपको एनालिसिस करके देंगे, यू जस्ट हैव टू गिव अस द डेटा, या फिर जो करेक्ट। भी आपको चीजें देनी है। क्योंकि यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कैपस्टोन प्रोजेक्ट होता है, उसमें कंपनीज आती हैं एक्चुअल में, और उसमें उसी तरीके से ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, 3-3 4-4 या 5-5 बच्चों के ग्रुप्स बनते हैं, उसमें पूरा प्रॉपर कोलेब्रेशन होता है। 3-4 महीने का जो पूरा क्वार्टर या सेमेस्टर होता है, थ्रू आउट द क्वार्टर सेमेस्टर ये प्रोजेक्ट्स चलते हैं, और उसमें हमको शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा कंपनी के लिए करके देना रहता है। तो ग्रेट। इस टाइप की चीजें कॉलेज वालों को करनी चाहिए, रादर देन फोकसिंग मोर ऑन कि हाँ भाई उसको ये चीज याद है नहीं है, या फिर वो ये इक्वेशन सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि नीड ऑफ द आवर तो ये है कि
ये सारी इक्वेशंस तो आप अगर नॉर्मली चैट जीपीटी को भी दोगे तो ये सब सॉल्व करके दे देंगे। ये डिपेंड नहीं करता कि यस, आप यस। उस इस पर्टिकुलर मैथ्स की इक्वेशन को या आप लीनियर रिग्रेशन को आप वो इक्वेशन बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, मैटर ये करता है कि आप उस चीज से करना क्या है और उसको कैसे करना है, ये चीज समझ पा रहे हो। तो आई वुड से कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है तो थोड़ा बहुत आपको इक्वेशन सॉल्विंग बच्चे को सिखानी चाहिए ऑन पेन पेपर, बट अदरवाइज यू हैव टू ट्राई कि आप एस मच एज पॉसिबल आप टूल्स का यूज करो। आप उनको ये सिखाओ कि हाँ भाई इससे होगा क्या, उसको कुछ प्रैक्टिकल चीजें प्रोवाइड करो जिसपे वो चीज को प्रैक्टिकली ट्राई करे। ओके, दैट इज इंडिया, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन इंडिया इज मिसिंग। आई थिंक आईआईएम्स वगैरह तो कर रहे होंगे ये चीज, बट आई डोंट नो। ओके। एक एक और सिंपल सा क्वेश्चन था, लाइक आई थिंक 2 साल पहले जब मैं लास्ट टाइम मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था, सो सेकंड डे ही एक बच्चे ने हाथ खड़े के उठ के मुझसे पूछा था कि सर, जैसे आपने भी बोला कि चीज़ें आजकल गूगल पे मिल जाती हैं, सर्च करके इंटरनेट पे सब चीज़ अवेलेबल है। तो उसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि सर आप आपकी ज़रूरत ही क्या है हमको अब, हर चीज़ तो इंटरनेट पे मिल जाती है। सो एज ए लाइक व्हाट यू हैव डन इज MBA ऑल्सो, MS ऑल्सो इन US, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? क्या वाकई में अब इंटरनेट इज ऑल 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 मतलब एवरीथिंग, और एक्चुअली रिक्वायर इन टीचर फॉर गाइडेंस? क्या गुरु की ज़रूरत है भी या नहीं है? बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब आई वुड से कि इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर जिसमें इच्छा है, जिसमें लगन है बहुत ज्यादा कुछ करने की, वो तो ऑनलाइन भी सब कुछ सीख सकता है, कर सकता है। बट आई वुड से कि काफी वाइड वास्ट नॉलेज अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो वाई अ टीचर और अ मेंटर, कोई गुरु क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि चीजें बहुत सारी अवेलेबल है, सही दिशा में कहाँ ले जानी है वो चीजें वो बताने के लिए कोई हो तो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आप अगर खुद से ढूंढ ढूंढ के पहुंचोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप दूसरी जगह भी पहुंच जाओ, या फिर आप इतने प्रॉपर जगह नहीं पहुंचो जहाँ पे आपको पहुंचना चाहिए। क्योंकि कोई कोई अगर पढ़ा रहा है तो वो सालों से पढ़ा रहा है, या फिर कोई पढ़ाने आया है तो, या कोई आपको समझाने आया है कोई चीज, तो 99% वो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेके आया है, उसको पता है कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। अभी आप खुद से अगर चैट जीपीटी पे गूगल पे कोई भी चीज सर्च करोगे तो आपको कंटेंट सारा मिलेगा। यू डोंट नो कि विच कंटेंट टू पिक फॉर मोस्ट रेलेवेंसी। आपको नहीं पता है कि हाँ इस कंटेंट से मुझे ज्यादा हेल्प मिलेगी जॉब में, क्योंकि कंटेंट तो इतना है कि आप कितना पढ़ लोगे, मतलब आप आप कितना ही पढ़ सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है और बहुत सारी चीजें और बहुत डीप में अवेलेबल है। और कई सारी चीजें तो ऐसी है कि आप अगर सर्च भी करोगे तो पॉसिबल है कि वो चीज आपको मिले नहीं, क्योंकि जिस भी बंदे ने वो डाल रखा है इंटरनेट पे उसने उस पर कोई भी खर्चा नहीं करा है, तो वो आपको दिखेगा ही नहीं। आपको ढूंढना पड़ेगा प्रॉपर कीवर्ड्स डाल के। तो आजकल बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग मी बुक्स नहीं पढ़ते हैं। इंटरनेट पे हजार बुक्स अवेलेबल है, लेकिन प्रोफेसर को वो एक चीज पता है कि हाँ इस बुक में ज्यादा सबसे अच्छा कंटेंट है, या फिर इस बुक को वाइडली सबसे ज्यादा लोगों ने पढ़ा है। तो या तो आप इतनी ज्यादा रिसर्च करो, या तो आप इतने ज्यादा समझदार हो कि आप पूरा इंटरनेट के थ्रू पढ़ लो, विच आई थिंक इज नॉट वेरी feasible एट दिस मोमेंट। बट हाँ, करने को करा जा सकता है, नॉट नॉट इम्पॉसिबल। बट हाँ आप ये कह सकते हो कि गुरु इसलिए जरूरी है, मेंटोर इसलिए जरूरी है क्योंकि दे गाइड अस कि हाँ ये पढ़ो। वो थोड़ा हमको फाउंडेशन दे देते हैं, वो हमको समझा देते हैं कि इस तरीके से चीजें होती हैं। अब उसमें डीप कितना भी जाना है वो आपके ऊपर है। इंटरनेट मुझे लगता है उस चीज के लिए है कि हाँ किसी ने बता दिया सामने वाले ने कि ये मॉडल है, इस पे मोस्टली चेंज मैनेजमेंट किए जाते हैं। तो अब आप उस मॉडल पे, आपको थीसिस करनी है उस मॉडल पे आप जाके कर लो, बट उसने आपको एक गाइड किया कि हाँ इस पे आप ये चीज कर सकते हो। या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, और कई सारी चीजें, इवन चैट जीपीटी हमने तो पूरे स्टूडेंट लाइफ में यूज करा बहुत ज्यादा, इवन बार्ड जेमिनाई सारे एआई मॉडल्स यूज करके देख लिए। कई ओके। बार वो भी गलत होते हैं, और कई बार ओके। वो जो आंसर्स देते हैं उसमें हमको एडिशन करने ही पड़ते हैं। तो ह्यूमन टच तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इन एनीथिंग। मतलब वो आपको बना बनाया आंसर दे देंगे, एंड दे आर आल्सो गिविंग ऑन ट्रेन पास्ट इनपुट्स। तो जो पास्ट इनपुट्स जो आए हैं वो भी किसी ने दिए हैं, कहीं से आए हैं।
तो आई कैन से कि, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे लोग कुछ सर्च करते हैं, उनको कुछ दिख जाता है तो दे बिलीव कि दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। इंटरनेट पे भी किसी ने डाला है, मतलब वो कहीं कहीं से तो आया है। और मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि यार, जो भी साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, वो भी रिसर्च और पब्लिश करने के बाद में, उनकी थ्योरी देने के बाद में बोल देते हैं कि अनटिल इट इज नॉट इनकरेक्ट, मतलब जब तक कोई दूसरा इसको गलत साबित ना कर दे, तो आप इंटरनेट पे जाओ और वहां पे आपको कोई चीज मिल जाए और आप उस पे भरोसा करके आगे बढ़ जाओ। और क्या पता, क्योंकि वो उस बंदे ने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से डाली हुई चीज है। तो जैसे मैनेजमेंट में ही कई मॉडल्स हैं जो किसी ने अलग दिए हैं, टेलर ने अलग दिए हैं, फेयल ने अलग दिए हैं, किसी ने अलग दिए हैं, और सबने अपने अपने हिसाब से दिए हैं। आप किसको फॉलो कर लो, ये आपके ऊपर है। करेक्ट, तो करेक्ट। ये बताने वाला इस पे मैं एक चीज़ जरूरी है। ऐड करना चाहूँगा कि दैट इज़ वन हाँ। थिंग दैट व्हाट आई फील एज इट, लाइक आई बीन टीचिंग लाइक फॉर 15 years. सो व्हाट हम्म। हैपेंस इज ना कि जैसे उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आपकी ज़रूरत क्या है, यू कैन नॉट हाँ। आस्क दिस क्वेश्चन टू चैट जीपीटी. It is as हाँ। simple as that. Like, you cannot prove that, you cannot prove something just by not हाँ। asking a stupid question. Like, I always suggest my students कि ask stupid questions, but you need to हम्म। ask. तो एक चीज़ ये है कि मुझे जो लगता है, लाइक दिस इज लाइक माई ओन पर्सनल ओपिनियन, ऐसे जैसे यशवीर ने कहा कि इट इज़ सब्जेक्टिव. सो व्हाट माई ओपिनियन इज दैट कि अगर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछना है, पहली बात. दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि गाइडेंस हमेशा ही चाहिए होता है, वो हम्म। भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड तीसरा जो मुझे लगता है कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको डायरेक्शन मिल गई, लेकिन जैसे आपने बोला कि अनलेस एंड अनटिल समवन एल्स प्रूव दैट यू आर इनकरेक्ट, सो वेयर यू हैव बीन इनकरेक्ट ये जानना भी ज़रूरी है. यूट्यूब पे वीडियो ढेर मिल जाएंगे, लेकिन वाई दैट इज़ करेक्ट एंड वाई दैट इज़ नॉट करेक्ट और व्हाट इज़ मिसिंग, ये अगेन एक राइट। फर्दर क्वेश्चंस होते हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको किसी के पास जाके उस पर बैठना ही पड़ता है. महाभारत सीरियल सबने देखी है, पर महाभारत में क्या सही है और क्या नहीं है, क्या स्किप हो गया, ये जब तक महाभारत पढ़ोगे नहीं, ये जब तक आपको कोई गुरु बताएगा नहीं, तब तक आपको लगेगा कि यस, बी आर चोपड़ा ने जो महाभारत बताई है वही सही है. हम्म। तो वही चीज है सर, मतलब वो तो फर्स्टली इट्स वेरी सब्जेक्टिव, कोई करना चाहे तो कर सकता है, बट इट्स नॉट वेरी इजी। बहुत एवरीवन्स कप ऑफ टी नहीं है। और मैं मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, मैं कोई सी क्लास में तो था, उसमें वो लोग चेंज मैनेजमेंट पढ़ा रहे थे, और उन्होंने बोला कि वाई चेंज मैनेजमेंट और लाइक ओवरसीइंग या सुपरवाइजिंग चेंज मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट। तो एक गेस्ट स्पीकर आया था जो चेंज मैनेजमेंट के कोच हैं, या बहुत सारी कंपनीज में उनने चेंज मैनेजमेंट कर रखा है। जब भी कोई बड़ा चेंज होता है कंपनी में, तो ही इज लाइक अ कंसल्टेंट, और जो पूरा उसको ऊपर से नीचे तक कि हाँ, क्योंकि चेंज मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, जिसमें एम्प्लॉयज को अगर कोई भी टूल भी नया आ रहा है, या क्योंकि काफी रेस्ट्रिक्शन टू चेंज होता है एम्प्लॉयज के अंदर या फिर कंपनी के एनवायरनमेंट में, उस चीज को कैसे चेंज करना और उनको कैसे अडॉप्ट करवाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो गए और उन्होंने करा, और वो उनकी सक्सेस स्टोरीज, और उन्होंने बताया कि वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। मैंने क्लास खत्म होने के बाद में उनसे पर्सनली जाके पूछा कि, और उन्होंने ये भी बोला कि 90% चेंज मैनेजमेंट फेल हो जाता है क्योंकि लोग ढंग से चेंज नहीं करते हैं वाइल ड्यूरिंग द सेशन। मैंने आखिरी में जाके पूछा कि आपने आपने कितने चेंज मैनेजमेंट सक्सेसफुली टेक किए और आप कितनी बार फेल हुए। हम्म. तो उन्होंने बोला कि मैं भी कई बार फेल हुआ। तो मैंने कहा, जब आपको ये सारे मॉडल्स आते थे और आपको ये सारा नॉलेज था, तो व्हाई यू गॉट फेल? और उनके पास ऐसा सच कोई बहुत ठोस जवाब नहीं था इस चीज का। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इट इट कंप्लीटली डिपेंड्स। आई मीन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई, और व्हाट इज अ गुड वे इज कि आप किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ में ट्राई करो। तो अगर वो फेल भी हुआ हुआ है उसकी लाइफ में, तो वो आपको बता पाएगा कि हाँ यार, ये करने से आप फेल नहीं होगे। और और ये तो लाइफ है, मतलब आप, फेल होना हर किसी का पार्ट है। अगर फेल नहीं होते हो तो आप इतना ज्यादा ग्रो ही नहीं कर सकते। तो अगर आपको रिजेक्ट नहीं आएंगे तो आप अगला रेज्यूमे अच्छा बनाओगे ही नहीं। आपको 100 रिजेक्ट आएंगे तब आपके रेज्यूमे में एडिशन करोगे। तो हर हर चीज में एग्जांपल्स है। बट हाँ, आई मीन गाइडेंस, मेंटर्स, स्पीकर्स, स्पीचेस,
ये सारी चीजें काफी जरूरी हैं। चैट जीपीटी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। लेकिन कोई कोई टीचर अगर कोई स्पीच देके चले गया किसी चीज पे कि हाँ वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, तो माइट बी पॉसिबल कि आप वहाँ मोटिवेट हो जाओ या डीमोटिवेट हो जाओ, और डीमोटिवेट होके फिर आप उस पर काम करना शुरू कर दो कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे। तो मतलब वो करेक्ट। ह्यूमन इंटरेक्शन आई बिलीव पर्सनली कि इट्स इम्पोर्टेंट, बट हाँ अगेन इट्स सब्जेक्टिव। करेक्ट, बहुत अच्छा बोला आपने कि व्हाट यू नो यू हैव टू ट्राई। यस, वेरी नाइस। सो यशवीर, अब आगे क्या, लाइक यू हैव डन एवरीथिंग फ्रॉम एमबीए टू एमएस, इंडिया से आप साफ समुंदर पार करके यूएस चले गए, अब आगे क्या? आगे तो सर ऐसा है कि मल्टीपल प्लान्स हैं, नॉट नॉट सिंगल प्लान, बट मतलब अभी तो काफी इनिशियल स्टेजेस में हूँ मैं मेरे करियर के। तो right now I'm just looking forward to gain as much as experience and exposure as possible, trying to make networks as much as possible. What I have learned from last 2 years is that network is something which will be there with you for your lifetime, wherever you are. So trying to make network as much as possible, काम करने की और काम सीखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। How usually things work in a corporate environment, or how usually things work in a basic company environment, किससे क्या करना है, कैसे बात करना है, कैसे काम करवाना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें समझ रहा हूँ अभी तो। आगे तो सर अभी हाल फिलहाल आई कांट से एनीथिंग, बट आई पर्सनली हैव प्लान्स टू बी बैक इन इंडिया, बट अगेन आई कांट गारंटी एनीथिंग बिकॉज अभी हाल फिलहाल तो 3 साल है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे रुकूंगा। पर एज आई सेड कि अगर आप इतना पैसा लगाते हो तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 1.5 ईयर टू गेट बैक टू नेट जीरो थिंग, और उसके बाद आप सेविंग्स कर कर पाते हो। तो इतना पैसा लगाने के बाद में अगर आप 4 साल 5 साल बाद भी नेट जीरो करके और इंडिया वापस चले जाओ, तो डेट डजेंट मेक एनी सेंस। तो आपको एटलीस्ट 4-5 साल तो रुकना चाहिए, और उसके बाद में इट्स अप टू यू। और I would say simultaneously India is growing at a very huge rate. Uh, कई सारे लोग अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है जब वापस से लोग इंडिया जा रहे हैं। मतलब जो एक ब्रेन ड्रेन हुआ करता था, जो लोग उड़ के आया करते थे, अभी मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा लोग वापस से इंडिया जा रहे हैं। उनने 10-10 15-15 साल उनकी लाइफ के यूएस में दिए हैं। नाउ दे आर हेडिंग बैक टू इंडिया बिकॉज दे आर एबल टू सी कि इंडिया इज ग्रोइंग, और वहां पे भी उनको वो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। कुछ लोग तो इस कारण भी नहीं जाते हैं क्योंकि इंडिया में वर्क कल्चर बहुत खराब है। दैट इज ट्रू। अगर अमेरिका से कंपेयर करो तो खराब है, बट अगर इंडिया से इंडिया में कंपेयर करो तो क्या खराब और क्या सही। तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि इट डिपेंड्स, इफ वी आर एबल टू ब्रिंग द फैमिली हियर we can stay here, but in 99% cases we can't, so it's better to be back in India. But again, I have not thought any plans at this moment. I'm uh, going to start something of my own very soon, but अगर वो होता है तो वो अगर इंडिया में अच्छा सेटअप हो गया तो आई विल बी बैक इन इंडिया एज सून एज पॉसिबल। नहीं तो थोड़ा टाइम यहीं पे रुकेंगे, बट कर रहे हैं काम। Great, great, great. It was like, I think it is a wonderful way to end this particular podcast, and Mhm. I hope you get what you want and what you deserve. एंड होपफुली ये जो सेशन रहा हमारा, जो हमारा टॉक रहा, ये Mhm. जो बच्चे हैं या दूसरे जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा उन्हें। एंड हम लोग और फिर एक और बार एपिसोड करेंगे कुछ टाइम बाद। सो Done, done. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड अगेन फॉर दैट। सो थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। Thanks a lot. Thanks a lot for inviting me. uh, it was really good experience. काफी अच्छे questions पूछे आपने, और काफी अच्छा लगा like to share all the stories with you. Hopefully it would help the future students, or anyone who is looking forward to pursue in this field or in any other field, or overall in US experience. But yeah, it was very good to talk to you. ओके, थैंक्स थैंक्स यशीर। Thank you so much, sir. Thank you.